A very good evening to all of you all here. Today's topic is cultural economy, its preservation and impact on industries. The panel here, we have Ms. Ashka Jadeja. She's a heritage professional, initiator and president, Delphic Council of India. Ashka, as we know, she's a heritage professional for intangible cultural heritage. She's actively involved in cultural business development, AMODA, and has designed and curated several heritage walks. A practitioner of creative culture economy and policy building, she is the youngest member at World Craft Council, WCC, for cultural organizations development. She is also the youngest member at Cultural Intellectual Property Rights as System Change Enabler, with legal perspective in the handcrafted fashion industries. So I'll welcome Ashka on behalf of all of us today. Our next speaker on the esteemed panel, we have Mr. Utsav Parmar. He is the IIS Deputy Director for the Government of India. He was the part of the batch of 2015 for the Civil Services Exam 2014. He is currently working as Deputy Director News in Doordarshan in the Ministry of Information and Broadcasting. He published a review paper in the Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. He has been awarded the prestigious IIPH Award from the Indian Institute of Public Health for contributing in science and health-related communication. Mr. Parmar also wrote a script for a drama, Ek Navi Sharuat, which got several awards including the Best Young Writer Award from Gujarat Sangeet Natak Academy. He was also part of the national media team where Prime Minister visited Bahrain in August 2019 along with various other achievements. So we'd like to welcome Mr. Utsav Parmar. And our third speaker, Ms. Neena Naishad. She's an engaging conversationist who attracts young talent to help build Ahmedabad's heritage, art and cultural identity. Nikoi Foundation is a non-profit venture that was formed to bring in quality productions and art exhibitions from India and around the globe to the city. Her vision is to change minds through arts, and she builds impact through discourse, debates, and discussions with stalwarts from the creative world. From films to art, book clubs, and travel, Ms. Naishad has invited quality theatre, film, and art shows to exhibit in Ahmedabad. She also runs a travel management company, Uniglo Perfect Connections, for corporate travel, and she has been a past chairperson for CII IWN. We'll welcome Ms. Neena Naishad. So we'll start our discussion here, and actually it is so much apt because Ahmedabad is the first heritage city of India. So I think this is the need of the hour to be discussed, right? So let's start our discussion. My first question will be to you. What are some successful examples of cultural preservation that have positively impacted local economies? Well, I'm so happy to be part of this panel and speaking in front of like Mr. Debashish Nayak. मुझे लगता है आपको सर यहाँ पे होना चाहिए था. So I think he is the right person to answer all these things better. But still, because of the wisdom that I have got from such leading persons like him, Mr. Anil Bhai is there, Rajendra Bhai is there, so lots of people over here. तो यही तो एक wisdom होती है, culture होता है. तो because I look after Doordarshan, that is also part of our audiovisual heritage. क्योंकि जो दुनिया दिखाना चालू किया वो दूरदर्शन ने किया और वहाँ पे काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है. तो काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि एक देखने का शौक़ है तो देखता हूँ रोज़. तो रोज़ नई कहानियाँ छोटे छोटे गाँवों से मेरे पास आती है और गुज़र जाती है. और जैसे आपने बताया, जैसे ऐसी एक मैं बात बता रहा हूँ कि कच्छ के अंदर ग्रोगन आर्ट, अब ये है 400 साल पुरानी कला. उसमें एक हल्का जो हम दिवेल गुजराती में बोलते कैस्टर ऑयल, उसमें कलर डाल के ये पूरा करके पूरा एक धागा बनता है और उसी से पूरी महीन पेंटिंग बारीक नक्काशी की जाती. नक्काशी तो क्या कहे बट उसी पे पूरा पेंट करता है. थोड़ा सा भी हाथ हिल गया कपड़ा खराब हो जाएगा. अब 400 साल पहले किसी ने मतलब खोजा होगा, ये तो विजडम ही होती है लोगों की. किसी ने तो खोजा है, किसी ने उस कलर रंग को देखा है, किसी ने पता किया किस टेक्सटाइल पे चलता है, ऐसे ऐसे होता है.
अब ये जो समझदारी है, ये समझदारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जाती है, उसको संभालना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक होता है कि आप प्राइड एंड ऑनर से उसको संभालें, दूसरा होता है कि आप उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव देके उसको वो ठीक करें, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाए। तो बहुत सारी चीज़ें हम जब देखते हैं कि जैसे अभी बीच में मेरे ऑफिस में सौदागिरी प्रिंट जो अब जिसको अभी जीआई टैग मिला, तो वो लोग ऑफिस में आए थे। अब इनका यही था कि वी आर द ओनली फैमिली दिस इज डूइंग दिस, बट उनके पास कोई इकोनॉमिक मॉडल ज़्यादा था नहीं। तो जहाँ जहाँ पे हमने देखा है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, प्राइड एंड कल्चर का ये बढ़ा, जिस तरह से अहमदाबाद हेरिटेज सिटी में हमने देखा कि जैसे पुरानी हवेलियाँ है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि लोग आके रह सकते हैं, उसको छू सकते हैं। बीच में ये आई थिंक ये कोचरब आश्रम में चला था कि स्टे लाइक गांधी 10 दिन तक, आई थिंक। तो जितना एक इमोशनल बॉन्ड हम अपने कल्चरल हेरिटेज से कर पाए, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि भी ये कुछ ही लोग कर पाते हैं या बहुत ही महीन ऐसी, मतलब एज अ स्किल तो है, लेकिन एक इमोशनल हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते से अगर हम जोड़ पाते हैं तो, और मुझे लगता है तो अच्छा रहेगा कि हम वैसे कपड़े पहने। अगर किसी ने वो कपड़ा बनाया है इकत के, अगर कोई साड़ी पहनती है या फिर हम कुछ प्रिंट वाले अच्छे से हम बाटिक वाले, अगर वो सौदागिरी वाले का हम टाई भी पहन दे। मैंने कहा कि दूरदर्शन के एंकर अब से ये बाटिक वाला टाई पहनेगा, तो टाई नई चीज़ है, उसका ब्लॉक है सौदागिरी का, वो नई चीज़ है, वो एकदम माइक्रो छोटा सा ब्लॉक। वो कह रहे थे 80-80 साल पुराने ब्लॉक है हमारे पास, उसको लगा के ये करते हैं, तो एकदम माइक्रो उसके डिजाइन्स रहते हैं, तो वो छोटी जगह में आ जाते हैं, तो टाई पे अच्छे लगेंगे। तो अब ये तरीका है हमारा कि किस तरह से हम उसको प्रिजर्व करें, ये करें। अच्छी बात देखिए, जैसे हमने इसको फेस्टिवल में बदल दिया, कच्छ का रणोत्सव आप देख लीजिए, जिस तरह से सरकार ने वहाँ पे ये है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख लीजिए कि आप क्या करते हो कि जो मॉडर्न एम्बिशन है और जो पुरानी जो चीज़ है उसको जोड़ के आप कुछ ऐसा देते हो जिसमें आदमी इन्वॉल्व हो पाए, उसकी मेमोरी बन पाए, है ना। कि अब आप कच्छ के रण पे जाके आप किसी को प्यार इजहार करते हो या वहाँ से आप अपने बच्चों को लेके जाते हो, तो ऐसी छोटी छोटी यादों के साथ अगर हमारी कल्चरल चीज़ें, आइडेंटिटी जुड़ती जाए तो वहाँ पे ये फ़ायदा होता ही है। हमने लद्दाख में भी देखा है, हमने सिक्किम में भी देखा है, बहुत सारी जगह पे कल्चर को अब अपनाना चालू, मतलब कल्चर तो अपनाए हुई चीज़ है, वो तो बहती नदी है, हमेशा बहती रहेगी, लेकिन वो जो नदी कहाँ से निकली है वो हमें पता होना चाहिए। साबरमती का पानी हम ज़रूर पिए, लेकिन निकलती कहाँ से पता होना चाहिए। गंगा में हम डुबकी चाहे लगाए इलाहाबाद में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहीं तो गंगोत्री है, उसका भी महत्व है। तो मुझे लगता है अगर वो गंगोत्री का ख्याल रहेगा तो गंगा साफ रहेगी, उससे प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वैसा ही इनिशिएटिव ले लेके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। That's nice. Ashka, मेरा next question is to you. So, how can we balance the need for preserving cultural heritage with the demands of modern day economic development? Namaste everyone, and thank you AMA Unmesh ji for this opportunity to speak on culture economy. Being a heritage professional, we have always liked to share our voice, and this platform and this series which we're gonna do will share about the consciousness about the culture economy and the business organization who is working into this industry. Coming to your point, Kuntal ji, ki, the balance which we are looking is, first of all, this title is too much of curiosity, like how we can see culture as an economy. And secondly, I would say culture economy is basically the community's economy. And it's a celebration of community's economy rather just the individual person. So like balancing mein, a preservation of old culture to today's modern development. There's an example like पहले के ज़माने में like long back at Royals के जो थे किंगडम, वहाँ से ये चालू हुआ था कि we had a Gujarati डायरो, बट उस टाइम का जो चीज़ था इट वॉज़ वेरी डिफरेंट एंड नाउ व्हाट वी आर सीइंग इट्स वेरी डिफरेंट. तो अगर उससे हम लिंक करते, इट इज़ अ लाइव पॉडकास्ट, जिसे आज हम एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट के लाइक आज की जनरेशन विच इज़ अ वेरी न्यू thing and the emerging platform for the young generation to pursue into this career. And it's a live podcast. Secondly, today it's a binge watching about the culture and the community जो उसमें share होती है. Today we have it Netflix to binge watch. Same with theatre. Today the content of the theatre, what we are looking is much more experience where you can connect with the story.
but we have again replaced with Netflix or Amazon Prime or then we have suppose for example जैसे हमारा even like culture is not only about the human but also for the migratory species, birds or anything. Like for example, take Thol or the flamingos which we see in Kutch. जब भी वो लोग आते हैं, it's a kind of avian Airbnb for them. And उनकी भी एक अपनी culture significance होती है because it is said कि कोई भी bird या फिर that species come to your house, there's a significance of their own. Like उसके पीछे भी एक notion है about culture, if this is a luck or a good luck or bad luck regarding it. And other balance में we are like at 25 years, like I have a family business into this, so I had an opportunity of learning and experiencing this industry for the time I was born, and then I had done my heritage management where Devashish sir is the pioneer of that course. So like I've seen the industry changing where we are now to the stage जहाँ पे awareness तो है but still that awareness is missing कि एक जो clear vision होता है ना वो it is not rightly pointed out. जैसे उत्सव जी ने बोला कि आज रण उत्सव है या स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो है, it is very good initiative and gradually it is creating the awareness about it, but still the vision of it is like about the natural culture heritage and taking people to that. But still the idea of the tourist coming back, they will only remember कि there was some statue of unity या white desert था और they are only like in a photo like वहाँ पे वो खींचने में उसमें होते, but they can't understand the real like जो essence समझाना चाहते हैं. When it comes to Ran Utsav, it's like you are understanding the village ecosystem because there is no only like to see the deserts which we have one in India and एक Australia में, but it is not the accessible place. So this is one. Yeah, so broadly speaking, I think when we talk of culture, food, clothing, lifestyle products, handicrafts, our language, everything is a part of our culture. So that way culture हर एक की life को impact करता है और हर एक की life के अंदर कहीं ना कहीं वो it's an integral part of one's life, right? So my next question to you, sir, is that what are some things that you think will motivate people to join this cause of preservation of the cultural economy? सबसे बड़ी बात कि ये पता होना, जैसे आपने बताया ये चीज़ें तो है, लेकिन मेरे हिसाब से कल्चर वो चीज़ होती है कि जो विजडम होती है, जो जनरेशन से जनरेशन तक वो बहती रहती है. मतलब कि एक आम एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि जैसे हमने सेब खाना कैसे चालू किया होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत गलत फल खाए होंगे और बहुत सारे लोग मर गए होंगे शायद हज़ारों साल पहले. तो ऐसे ऐसे तय हुआ कि भी ये सेब खाते हैं, ये इसका कपड़ा पहनते हैं, इसका फाइबर अच्छा है, इसका ये अच्छा है ना. तो बहुत सारा हमने खो के बहुत कुछ पाया होगा. अब ये जो पाया है उसको भुलाना क्यों है ना. हर जनरेशन में ये तो नहीं तय करती है ना मिलके कि अब कौन से फल खाएंगे. अपनी अगली जनरेशन ने तय कर दिया है तो उसको चलाओ ना, है ना. तो अपनी अगली जनरेशन ने कह दिया कि भाई यहाँ सूती कपड़े ठीक है, यहाँ धोती ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है ना. यहाँ खाने में ये चीज़ ठीक है, भाई तुम क्यों बाहर का ये ब्रेक खा रहे हो, यहाँ पे गेहूँ खाओ ना, बाजरा जहाँ पे उगता है वहाँ बाजरा खाने दो ना, है ना. क्योंकि आपका तारतम्य है उस कल्चर से, उस नेचर से. मेरी एक बार बीबी दोषी जी से बात हो रही थी, वो हमारे दूरदर्शन के ऑफिस में आए थे. हमारे यहाँ पे 2 कमरे हैं, एक कमरे में खिड़की नहीं है, पूरा एसी से पूरा रूम है, और दूसरे कमरे में एकदम खुली खिड़की है. तो नीना जी वो बता रहे थे कि मैंने कहा कि ये एक कमरा है जहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जहाँ पे एसी बेसी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे अलग तरह का वाइब रहता है, यहाँ पे अलग तरह का रहता है. तो बीवी दोषी जी ने कहा कि देखिए कि यहाँ पे ना खिड़की आपकी खुली है, जो खुला रूम है वहाँ पे अगर सुबह धूप आती है ना तो पता चलता है धूप आई, पत्ता गिरा, जो एक समय पे हरा था उसका रंग बदल रहा है, उसका कलर बदल रहा है, उसकी पूरी की पूरी एक फितरत बदल रही है ना. कहीं से वो सांप गुजर रहा है, चींटियाँ रेंग रही है, जो बुगनविला के पत्ते हैं वो गिर रहे हैं. तो आप में जो प्रकृति में जो परिवर्तन है उसके साथ आपका परिवर्तन भी आपको दिखता है.
तो जो कनेक्ट जो हम बोलते हैं, जो सेतु बोलते हैं, जो जुड़ना बोलते हैं ना, अपनी जड़ों से जुड़ने वाली बात है, तो अब आप बड़े ही प्रफुल्लित रहते हैं, आपको पता रहता है, और आप आपका एक जो मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो उसके साथ आप शायद जुड़ पाते हैं। कल्चर भी ऐसी ही चीज़ है, एक बड़ा पेड़ है ना, उसने समय के हर दौर को देखा है। जैसे अब गर्मी बढ़ गई तो फिर हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं, है ना, जैसे बारिश आ गई तो हम लोग रेनकोट निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल लेंगे। तो समय के साथ जो बदलती जो हमारी सोच है, समझ है, वो समझ अगर आती है तो हम अच्छी तरीके से जिंदगी को जी सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस आना, अभी आज हमारे पास चॉइसलेस अवेयरनेस, लेकिन चॉइसफुल अवेयरनेस आए। चॉइसलेस अवेयरनेस इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम देखते हैं जो देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें सुनते हैं जो सुनना नहीं चाहते, ऐसे गाने सुनते हैं, लेकिन एक चॉइसफुल अवेयरनेस कि नहीं, ये मैं हूँ, मेरी ये पहचान है, और ये पहचान जहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है, यहाँ से मुझे जुड़ना है। अच्छा, हर पुरानी बात अच्छी भी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सब पुराना है वो सही है ना। पुराने में जो गलत है उसको तोड़ो, नया सोच है उसको जोड़ो, और उसके बाद अगर तुम आगे बढ़ो और उसमें अपनी भावनाओं को जोड़ो, अपने अनुभवों को जोड़ो। आदमी जब तक अनुभववादी बनेगा ना, मुझे लगता है कल्चर से अपने आप जुड़ेगा। हमें फिर ढूंढना नहीं है कि यहाँ पे हम इस देश में जाए, कुछ खोज निकाले, कुछ मूर्ति खोजे या कपड़े खोजे, ये खोजे। हम अपने आप के अनुभवों को अगर जोड़ते जाएंगे तो हमें खुद ब खुद लगेगा कि नहीं, ठीक है, हमें ये करना है ना। अगर गर्मी लगेगी, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, तो पहने क्यों नहीं पहनूंगा, धोती मैं क्यों नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है कि नहीं यार ये ठीक है। अगर मैं देखूंगा बाहर की तरफ कि यार ये बड़ा अच्छा लगता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज़ है ना, तो अगर मैं चॉइसलेस अवेयरनेस की तरफ जाऊंगा, उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। तो ये है, तो जितना अपने भीतर देखिए, जितनी बातें होगी, है ना, जैसे ये कहते हैं कि भाई हम केवल जड़ों को नहीं, फूल को भी देखना है, तभी पूरे पेड़ को हम देख पाएंगे, पूरी संस्कृति को समझ पाएंगे। तो संस्कृति या कल्चर ये सतत बहती प्रक्रिया, जब पहले भी मैंने कहा, तो उसके किनारे बैठ के आप देखो, उसके किनारे, समय के किनारे बैठ के आपके पैर भिगो और सोचो, क्योंकि एक ही नदी में दो बार नहीं बह सकते हैं, है ना। तो ये मुझे लगता है अगर ये अनुभव लोगों के अंदर आएंगे तो लोग अपने आप ज़्यादा जुड़ पाएंगे, चढ़ पाएंगे। So it's about going back to your roots, और उसकी एक खोज है this entire thing. So Neena ji, आपसे next question. What is the impact of contribution of cultural economy to our country? According to you, what part of our cultural heritage appeals most to the general public, and why do they connect with it? Sorry, what is the first thing you asked? So the question is in two parts. The first part being, what is the impact of contribution of cultural economy to our country? And the second part, so what according to you, what part of our cultural heritage appeals most to the general public, and why do they connect with it? Okay. I feel art and culture opens your mind, in fact. It makes you a questioning person. It makes you learn diversity, appreciate the different culture. I'm talking of culture in general. I mean, so basically, even interacting with different countries' culture and all. Basically, you become a thinking person, a questioning person. You develop empathy, and above all, it makes you human. So I think that is the biggest contribution of culture. I've always felt that why are we bringing in culture and economy together? Because to me, economy brings in the money part. And somehow success these days is always measured by the money part of it. I mean, that's my biggest issue with culture and economy both together. But anyway, I feel culture makes a person human. You start appreciating the diversity in a diversity, you start appreciating nature. What more does one person need? And in terms of appreciating what art, I mean, what is the easy form of art that people appreciate?
I feel it is also a product of what you, as a child, how you've grown up, how the surroundings have influenced you. And I feel it is folk art which is, everybody feels it's easy to understand, but that's because we have lived amongst it. We have grown up with it, we have seen it around it. But if you bring in art and culture at a young age, expose people to different kind of art, heritage, culture, you slowly start accepting and appreciating all kinds of art. But folk basically gets more priority over others. People feel that they understand it better. I feel like when I pass through this Gulbai Tekra and there is a community living there. It is also in the community that folk art, and that's what influences people. So when I see those communities, I always admire the women's dresses and the way they have mixed and matched different combination. I wonder they have never ever gone and seen what a color wheel is. They've never been to a design institute. But yet, their sense of aesthetics is so nice. I think it's the community that is more, is driven towards art, culture. They make these beautiful statues and all. So it's your mindset and what you grow amongst, what surroundings you grow in. That gives you the sense of understanding art and culture. That's exactly, I think, although culture and economy, two separate topics, but the way they are blended, for instance, if we take a festival of Navratri, so much of cultural importance to the entire thing, but there are so many industries that run on Navratri. It's just 9 days in a year, but then there are people who are making their livelihood throughout the year based on these 9 days. So connecting to the same aspect, how does the cultural economy influence and intersect with each other in different industries such as tourism, fashion, media, entertainment, etc.? So Navratri is a very good example. Navratri, Hornbill Festival. It has put Nagaland on the tourism map internationally also. And I'm reminded of Kochi Biennale. It started in 2012 as a small initiative, but it is a 3-month-long initiative now where international artists also come, national artists also come. They stay there, they make art, and there are huge installations which are not only exhibited in the existing galleries, but they take unused warehouses, heritage buildings, and refurbish them for this. And that's one part of it, which actually affects, it brings in a lot of revenue to tourism as well as the state itself. Lots of people now go to visit the Kochi Biennale, not only from India, but across the world. And that brings in revenue to, again, tourism and even the local community, because when you make art, there's a lot of material that is used, and when you refurbish these huge buildings, that's all revenue to the labor that is there. And also I have seen that the rickshaw fellow there knows what the venues of the Biennale are. And on a free day, when there's one day that they have a free day, lots of people come in and see this. It opens up their mind. And so Kochi is now on an international map. So even if there's not, the Biennale is not there, because it happens every alternate year, Kochi gets a lot of tourists. And it's a beautiful space, and I feel it has changed the way people look at Kochi.
Coming back to Ahmedabad and our own state, Ashka, I want to ask you that what impact will the organization Delphic Council of Gujarat play role in contributing towards the cultural heritage of our state and on the larger front, our country? So first of all, Delphic Council of Gujarat, it symbolizes water, and so we today had our natural water rain first time in Ahmedabad. And Delphic Council of Gujarat, Delphic is a twin sister of Olympic Games, which is for art and cultural sports. So basically, as a mission for the state of Gujarat, we want to bring youth and elders together to bridge a gap between जो like हमारे ancestors के पास the heritage or the knowledge or the skills what we have it, we want the younger generation to accept it, but there would be a modernization in it. So this is one mission for it. Secondly, Delphic Council of Gujarat is a platform where we want to give an opportunity to as many as people we can, and as we have seen today, we have our many commoners also who are interested or want a platform where they can showcase, apart from their professional, they can showcase their passion for it. And this is a platform where we can get many talented people who can get a recognition and appreciation to it. Today, Delphic Games have been started in 1994, and in 2009, our own minister from Northeast have even won the gold medal for it. Also, Delphic stands for diversity in unity, where diversity is a power of our country, which unites the culture heritage and which boosts the economic growth of the state. Also, like Delphic is a idea where we can share or spread the knowledge not only within the state but the national and international level. Great. So I think it's almost at par with the Olympics that we talk about. Right? Definitely. Yeah. So adding to that, what part of our culture and heritage is at maximum risk, and how we can rectify that in the current times? So human is at the maximum risk which we can tell, because today to move forward our culture we need each other's support, and the heritage as a bigger umbrella for art and culture industry, we can say it's called as a sunset industry. However, it is a bridge which can take us to the happiness index growth, where our country stands at 126th rank compared to 143 countries, and as a state of Gujarat it is at the 6th level. Today, for example, the sustainability, the word which we have now been practicing since last 10 years very accurately, and every organization or every corporates or every company have something to offer for sustainability. So in India, it had been always a practice of sustainability. It's just that a practice never got a term, and that is what we even lack to do it. And the same way today, being a city or a state or a country who is very rich with its culture and art, so with this we want to put up an example कि अगर we won't be having a same coming together and we won't support this, then some other country would dominate and take the sustainability idea what we had it. So through Delphic we give a platform where we can have a voice for our own culture, and we dominate through it in the entire world. Also, recently I had read a socio-economic report of 22-23, where there are almost 21 categories where we contribute, but there is no kind of contribution or data or information
directly telling about anything on the cultural practices or culture which can increase the GDP of our country. In year 2002 and 2003, our GDP rate was 8.6. Only Gujarat was contributing to India. And now they have targeted in 26 and 27 almost $5 million, which will take to 10% of GDP. Only Gujarat would be contributing to India. So through Delphic, we want to create an awareness कि if we come together and have one voice, then we can have our voice in the economic contribution as well. And yeah, so sir, in today's day and age, platforms like television and film media, do you really think that they aid this cause, or can it have detrimental effects? अब ये दो तरह की बातें हैं यहाँ पे। तो एक होती है ना कि ये चीज़ अगर सही दिशा में ले जाए तो हमें कहीं भी पहुँचा सकती है, अगर गलत दिशा में गई तो दिक्कत भी कर सकती है। बट जैसे आशका जी ने बताया, नीना जी ने बताया, मैं यही कहूँगा कि हम लोग क्या है, व्हाट वी आर। आप कुंतल क्यों है? बिकॉज समवन टोल्ड यू आर कुंतल। शी इज आशका बिकॉज हर मदर टोल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, डे 1 डे 5 मे बी, कि यू आर आशका। हमारे जो नाम है, हमारी जो पहचान है, वो कही गई बातें हैं, और कही गई है तो हमने मान भी ली है। मैंने अपने नाम पे कभी सवाल नहीं उठाया कि मेरा नाम ये क्यों है ना। तो जो बातें हम कहते हैं, सुनते हैं, वही हमारी एक मोरल साइकोलॉजी हमारी बनती है ना, जो डिसीजन मेकिंग में फिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते क्या है, सुनते क्या है, देखते क्या, उसका फर्क तो काफी पड़ता है बहुत सारी चीजों का। तो हम दिखाते क्या है। अब दिखाने में तो हर चीज अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन ये सामने वाले पर है कि उसमें से वो चुनता क्या है। दिखाने वाले को जो दिखाना है वो दिखाए, लेकिन हम ऐसे लोगों का, ऐसी प्रजा का, ऐसे नागरिकों का, ऐसे इंसानों का निर्माण करें कि जो उसको पता हो कि यार ये सही है, ये गलत है। तो ये सही गलत की पहचान करने की ताकत अगर हम दे, वो कल्चर पैदा हो, ताकि बार बार हमें चिल्ला चिल्ला के ये कहना ना पड़े कि अरे इसको सुनो, ये सही है ना। ये तो बुद्धि का अपमान है। 2 लाख साल लगे इस फ्रंटल कॉर्टेक्स को बनने में। मतलब अगर इफ आई टॉक अबाउट इवोल्यूशन, और ये भी हेरिटेज है अपना, है ना, डीएनए का मतलब अपना जेनेटिक हेरिटेज है ये पार्ट। किसी भी जानवर को आप देखेंगे वो स्लैंटेड होगा उसका आगे का पार्ट, लेकिन हमारी सारी भाषा, ये सोच, ये विचार, जिसने माइक ढूंढा है, सोफा बनाया है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कैमरा, ये सब यहाँ, ये भाषा सब यहाँ से आता है। तो इसका सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि हर बुरे समय से, हर बुरे वक्त से इसी ने हमें निकाला है ना। क्योंकि अब हमारे बॉडी के पास एवोल्यूशन में इतना टाइम नहीं था कि वो फर उगा सके, है ना, सर्दी में। लेकिन हमें पता है कि कोई भेड़ है, बकरी है, उसकी खाल हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ अवेलेबल है उसकी हम यूज़ कर सकते हैं। पानी साफ नहीं है, देवाशीष भाई इधर है सर। मैं अभी उस टाइम पे तो सेप्ट नहीं थी, या फिर कैसे कोई IIM नहीं थी, कुछ नहीं थी। आप देखिए पुराने उसमें हम जाते हैं तो देखते हैं, लिखा है उसमें पुराने जैन देरासरों में कि पानी का संग्रह कैसे करें। अभी बारिश हो रही है तो मुझे याद आया, सर को देख के भी याद आया कि भी जब 15 अगस्त के बाद मघ नक्षत्र हो, तब आप पानी, जब हवा साफ हो गई हो, आप पानी ले लीजिए। और कॉपर का पूरा है, कॉपर इज एंटीबैक्टीरियल, और ये तो हमारे पुराने उसमें भी लिखा हुआ है, समझ से, मतलब इस तरह से। तो आपका पानी आ गया 0 TDS वाला। अब उसमें चूने का पत्थर का ये आपकी टंकी है, कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल आप क्या, जिसके मिनरल वाटर आप बोलते हैं, जिसका बिस्लेरी या जो भी आप सुनते हो करते हो। तो ये जो चीज़ आती है वो यहाँ से आती है ना, कि भी सच गलत। और हर समय में देखिए, हर समय में सही और गलत चीज़ तो होती है। तो पहले ऐसा नहीं था कि नाटक और लिखने वाले सब अच्छा ही लिखते थे। जितना अच्छा लिखा गया है उतना बुरा भी लिखा गया है, आज भी, पहले भी। लेकिन उसके बीच में से जो साहित्य, जो कविताएं, जो शब्द, जो चीजें जिंदा रही, वो क्यों जिंदा रही? ऐसा नहीं कि बुद्ध और महावीर के काल में खराब चीजें लिखने बोलने वाले बात नहीं थे, लेकिन स्पेस टाइम में चीर के बुद्ध और महावीर की बातें खड़ी है।
सोक्रेटिस की बातें खड़ी है, प्लेटो की बातें खड़ी है, एरिस्टोटल की बातें खड़ी है, कालिदास आज भी जिंदा है ना? उसने समय को, पीढ़ियों को तोड़ दिया। तो ये काम तो है, लेकिन ये चुनिंदा उन लोगों ने काम किया है जो जिन्होंने अपनी जमीर को जिंदा रखा है और पहुंचाया है। तो मीडिया का रोल तो बहुत है भाई, है ना। आज हम देखें तो हमें लगेगा कि भी लोग बिगड़ जाएंगे, लोग बिगड़, कैसे नाजुक लोग हैं बिगड़ जाते हैं कैसे नाजुक लोग हैं बिगड़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देख के सुन के भड़क जाते हैं। मतलब अगर भड़क जाते हैं या बिगड़ जाते हैं तो हम बड़े अपरिपक्व लोग हैं, बड़े ही अपरिपक्व है कि 20-30 साल सुनने देखने के बाद भी हम लोग भड़क जाते हैं, हम आहत हो जाते हैं किसी के कुछ खाने से, किसी के कुछ पहनने से, किसी के कुछ बोलने से, बिकॉज देयर वे ऑफ लाइफ इज डिफरेंट देन अदर्स। अदर्स छोड़िए, अवर्स, क्योंकि वो अलग तरीके से जिंदा है। ये संस्कृति का बढ़िया बात मैं थोड़ा बोलूंगा। मजा ये आता है कि यार देयर आर अल्टरनेट वेज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, ये पता चलता है। अब जैसे मैं सिक्किम में गया, लेप्चाओं के बीच में, लेप्चा इज अ ह्यूमन स्फीयर रिजर्व, तो वहां जाके पता चला कि अब हम लोग कंक्रीट के जंगल में जीते हैं, अब वहां इतनी बारिश होती है, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, फिर भी वहां के घर लकड़ी के हैं, पत्थर के। लकड़ी, पानी में लकड़ी कैसे? उनका सिंपल सा लॉजिक है, बोले कि साहब ये पेड़ देखिए, ये पेड़ हजारों सालों से खड़े हैं, उसी बारिश में भीगते, उसी धूप में सीखते हैं, खड़ा है ना, उसका नेचुरल टेंडेंसी है। जब तुम उसको काट के मार देते हो तो उसका वो गुण चला जाता है। बट वहां जाके पता चला यार हम तो ये समझते ही नहीं। पत्थर को देखिए, बोले कि हम सिस्मिक जोन में, मतलब सिस्मिक जोन नहीं बोला उसने, कि भूकंप काफी आते रहते इस तरह से। अभी वड़नगर की खोदाई चल रही है अपने गुजरात में। वड़नगर इज अ सिटी की 7 सेटलमेंट वहां पे आज भी मतलब आपको देखने को मिलेगी। अगर आप वहां पे पूरा वर्टिकल स्ट्रेटा आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 8वीं-9वीं सदी का जो लेयर है, मतलब डिपोजिशन के बाद ये ओवर, वहां के घरों में एक फर्क आया। पहले वहां पे वो ईंटों से या जैसे भी घर बनते थे, उन्होंने देखा कि 9th और 10th सदी के आसपास से वहां पे सेडिमेंटेशन को ज्यादा हुआ है, तो इतना आर्टिफैक्ट्स इतने वो ये नहीं हुए। लेकिन बीच बीच में बांबू लगाए गए घरों के बीच में, बांबू। अब बोले बांबू क्यों लगाए उसने? तो पता चला कि उस टाइम पे भूकंप आया था, तो उन्होंने घर नहीं छोड़ा, घरों को शॉक, शहर नहीं छोड़ा, घरों को शॉक एब्जॉर्बेंट बनाने के लिए बांबू डाल दिए थे, वो वहां पे रह रहे हैं। और हम यहाँ पे जब 2001 में भूकंप आया तो सब बहुमंजिला इमारतें छोड़ के हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखा। हम आज भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखते, भाग जाते हैं। कोरोना है, भाग जाते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन नहीं कि हेल्दी लाइफस्टाइल करे, ये करे, वो करे। तो एक होती है कि द वे ऑफ लाइफ एग्जिस्ट और अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा, ब्लैक कॉफी। अब हम लोग सब चाय पीने वाले लोग हैं। चाय वैसे हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो 100 साल पहले ही आई है, 100-150 साल पहले ही आई है। हम इतने गर्म प्रदेश में चाय नहीं होती, और चाय के साथ दूध शायद भारत में ही होता है। मुझे नहीं पता है साउथ एशिया के अलावा शायद कहीं पे होगा, देवाशीष सर बता पाए कि मुझे नहीं पता है। लेकिन चाय दूध, बिना दूध के पी जाती है। दूध के साथ चाय पीते तो ये सेपोनिन बनते हैं, और उससे क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन आपका कम हो जाता है। वो चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, वो ठीक चीज़ नहीं है। लेकिन ये कमर्शलाइज करके उन्होंने कल्चर डाल दिया है। इकोनॉमी तो अंग्रेजों से आप सीखिए, उन्होंने इसकी वो इकोनॉमी वो अच्छी जानते थे, हमारे पास कल्चर था। तो चाय का कल्चर डाल के वो तो करोड़पति हो गए, ये हो गए, सब निकाल के ले गए। लेकिन ये जो मैं बता रहा था कि सॉरी आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक, कि किस तरह से जो चीज़ें होती है कि हमें अपने विजडम से ये करनी चाहिए। तो कॉफ़ी की मैं बात बता रहा था कि द वे ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। तो मुझे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वेंट टू साउथ अमेरिका, वहाँ पे देखा हर एक आदमी ब्लैक कॉफ़ी ऑफर कर रहा है। ब्लैक कॉफ़ी ऑफर कर रहा है, मतलब पूरा कॉन्टिनेंट पी रहा है, मैं क्यों नहीं पी रहा हूँ? वो सब प्लेन में वापस आते हुए सोचा मैंने। फिर यहाँ के जब पहली बार जब किसी दोस्त के साथ वो पिए, मुझे अच्छा लगा। सो एक एक्सेप्टेंस जब आता है ना कि नहीं, ब्लैक कॉफ़ी भी हो सकती है, लोग पी सकते हैं, ऐसा नहीं चाय ही पीना चाहिए, ऐसे भी लोग कपड़े पहन सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं। जब तक आपकी आदतें, आपके रीति रिवाज किसी औरों के हकों का हनन नहीं करते, किसी और का शोषण नहीं करते, तब तक वो सही है। मेरे कुछ करने से किसी और आदमी के, व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तब मुझे रुक जाना चाहिए। बस
मुझे लगता है इस ऐसा करके अगर हम चले और ये बात मीडिया समझे, लोग समझे और दिखाने वाले दिखाएंगे, लेकिन जो अपने आप अंदर झांक के अगर वो चले, मुझे लगता है वो सही तरीके से हम कर पाएंगे। और अगर इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट ये भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि लोग अगर सोचना बंद कर देंगे कि टीवी की जिम्मेदारी है, इंटरनेट की जिम्मेदारी है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वो उसकी सोचने की जिम्मेदारी है, तो ये नहीं, सोचने की जिम्मेदारी से भागना नहीं है। तो टीवी उसको सोचने के लिए मजबूर करे, मीडिया मजबूर करे, लेकिन सोचने से उसको भगाए नहीं, उसको वहीं पे रखे कि वो सोचने के लिए वो सही गलत का चुनाव करता रहे, आज भी करे, कल भी करे, परसों भी करता रहे। नेक्स्ट थिंग, थैंक यू। Yes, of course. या सो आपने जो मेंशन किया कि चाय तो ओके जिसकी भी है, बट इकोनॉमी ब्रिटिशर्स हैड अ वेरी गुड, बट टुडे अगर हम देखें तो कल्चर हमारे पास था, इकोनॉमी उन्होंने सिखाया, बट आज अगर देखें तो वो लोग क्राइसिस में, और आज हमारे पास कल्चर है तो हम उन्हें लाइक वी कैन टेक फॉरवर्ड इट टू जनरेशन, देयर वोंट बी अ क्राइसिस इन आवर कंट्री बिकॉज culture is a roadmap to show where we can go. Today they are hiring Taylor Swift, who will increase their 900 million euros economy for them. So this is the power of culture, and if we accept it together, then we can make it to very big in this country. So it's like हमारा culture हमारी जीत. सर आपने जो चाय का टॉपिक छेड़ा है, तो आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री टू दिस। चाय उन्होंने दे के गया है, बट आई थिंक हमने इंडियन कल्चर में चाय को ऐसे इंटीग्रल पार्ट बनाया कि चाहे गुजरात हो तो सुबह चाय और गांठिया, चाय और फाफड़ा, चाय और खाखरा, राइट। आप नॉर्थ में चले जाओ, इट्स चाय एंड मटरी, चाय एंड पराठे। सो मच सो कि हमने फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक आज हमारा खाखरा, फाफड़ा, पापड़ी, एवरीथिंग इज अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब, राइट। सो आई थिंक दैट इज कूडोज टू आवर गाइज हुएवर हैव डन इट। चाहे हमारा कंदोई का मोहनथाल हो, या चाहे हमारी बांधनी प्रिंट साड़ीज़ हो या ड्रेस मटेरियल हो, वर्ल्ड मैप पे डिज़ाइनर्स हैव टेकन आवर फैब्रिक्स, आवर कारीगरीज, and so that's what it is. There's so much of economic significance of our culture, and a lot is possible in this area is what I feel. So if you'd want to add a bit on that. आपने खाने की बात करी है और अनिल जी भी इधर है, तो मुझे याद आ रहा है कि हम कितने ग्लोबलाइज, अब ग्लोबलाइजेशन कुछ नई चीज़ थोड़ी ना है। सालों पहले अरब लोग जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते थे। आप अगर झवेरचंद मेघाणी को पढ़ते हैं, गुजराती लोग को ख्याल रहे, तो उसके वली मोहम्मद अरब की बात आती है कि अरब कहाँ से आते थे, घोड़े आते थे, और वो यहाँ से घोड़े यहाँ बेचते थे, हम लोग मोर और ये सब बेचते थे वहाँ पे, ये सब ट्रेडिंग चलता रहता था। तो अब ये गर्म प्रदेश से आते थे, तो वहाँ पे एक सैम्बूसक करके एक होता था। तो सैम्बूसक बेसिकली उसमें वो क्या कैमल का मीट डाल के, ऊँट का मीट डाल के वो ट्रैवल करते थे और यहाँ आके वो खाते थे। अब वही सैम्बूसक, और फिर पुर्तगाली आए, पुर्तगाली अपने साथ वो ये पोटैटो, टोमेटो सब लेके आए। अब देखिए अरब सैम्बूसक लेके आया, ये पोटैटो लेके आए, और उसका मिलके हमने बना दिया समोसा। तो समोसा भाई हमारे पास यहाँ से आया है। जो अब तंबाकू का इतना बड़ा इंडस्ट्री और मतलब वो भी कल्चर ही है, मतलब अच्छी बुरी अलग चीज़ है, वो भी कल्चर है। वो पूरा सौराष्ट्र पे जाए तो मावा का कल्चर जो बोलते हैं। तो सबसे पहला जो उसका प्लांटेशन है, दैट प्लांटेशन वाज डन इन खेड़ा, अपने गुजरात में। रिपोर्ट है पोर्टुगीजों का 1819 के आसपास का कि भाई ये जगह पे यहाँ का क्लाइमेट में ये सूट होता है, उगाओ इसको। अब उसी से पूरा आईटीसी नर्मदा आप देखिए आईटीसी उधर से ही बना, वहां से निकला। तो जो आप इकोनॉमी की बात करते हो, इस तरह से ये चीजें होती है। तो खाने पीने का तो जो चीज़ है एक सब, वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम जब बाहर जितने भी लोग गए होंगे, हम जब भी जाते हैं मसालों को याद करते हैं। आप देखिए भारत का मसाला ही है, भारत का या साउथ ईस्ट एशिया का मसाला ही अंग्रेजों को, पुर्तगाली को खींच के लेके आया। वास्को दा गामा, वो जो आप इसको ये मरी ब्लैक पेपर, उसको तो ब्लैक गोल्ड ही बोलते हैं। और इतने पागल थे, वो प्लीनी नाम का एक लेखक है, वो लिखता है रोम में कि रोम के लोग यहाँ के ब्लैक पेपर के लिए इतने पागल है कि सारा का सारा रोम का सोना जा रहा है भारत में, भाई रोको इनको खाने से।
तो हम जब भी जाते हैं हमें हमेशा अपनी दाल याद आती है, ये याद आती है। क्विजीन के मामले में तो मैं नहीं मानता हूं कि भारत की बराबरी कोई और देश शायद कर भी पाएगा। हम सैटेलाइट मैप में बीच में देख रहा था, क्रॉप वेजिटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो कि ये देश कितने सालों से, अगर 150 करोड़ लोग आज यहाँ पे जिंदा है तो क्यूमुलेटिव आप देखो तो कितने करोड़ लोग जिंदा रहे होंगे। इस देश की मिट्टी आज भी उतना अनाज उगाती है, आज भी उतना पानी देती है, आज भी मतलब बहुत, मतलब हम अब बहुत कम सुनते हो कि लोग भूख से मरते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोई, लेकिन आप देखिए कोई भूखा पेट सोने वाला आदमी आपको शायद ही कहीं मिलेगा। मतलब तो मेहनत करके कुछ ना कुछ कहीं पे अन्न क्षेत्र चल रहा है, कहीं पे फ्री में खाना बंट रहा है, कहीं पे सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन हम सक्षम है ये 150 करोड़ लोगों को खाना खिलाने में, खाना पहुंचाने में। तो इतनी उर्वरक, इतनी ताजगी से भरी हमारी ये है। और ये कितने सालों से गंगा के किनारे के आसपास से नीचे पूरा देखिए, पूरा का पूरा देश रंगों से, संस्कृति से, लोगों से, गीतों से, गानों से, इतिहास से भरा पड़ा है। जहां कहीं जाए वहां पांडवों की बातें हैं, जहां कहीं जाए रामायण की बातें हैं, जहां कहीं जाए आपको कोई ना कोई कहानी सुनाने वाला मिल जाएगा। मैं ये लेप्चा लोगों के पास गया, मैंने कहा कि अब बोले कि आपका म्यूजिक कैसे बना? वो बोले कि हमने क्या किया कि ये भंवरे का गुंजन ले लिया, तो उससे हमारे सुशीर वाद्य, मतलब ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है तो वो भंवरे से ले लिया, और ये बांस में से जब हवा गुजरी तो उसकी जो आई तो उससे हमने बांसुरी का आवाज ले लिया, और ऐसे हमने अपना पूरा संगीत बना। अलग अलग चीजों को सुन के, पत्ते जब गिरे तो गिरने की आवाज पकड़ ली, उससे हमने अपना संगीत बनाया। कितनी कहानियां हैं। तो आप जहां जहां जाए किससे कहानियां, अपना देश इतने सारे लोगों से, विविधताओं से भरा है। और मुझे मार्क टेली की किताब है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, उसके इंट्रोडक्शन में बहुत बड़ी बात लिखी है कि भारत ऐसा देश है ना कि भाई उसके बारे में आप दो विरोधी बातें एक साथ कह सकते हैं, है ना। दो पैराडॉक्सल थिंग्स यू कैन थिंक। अगर आप कहे भारत एक गरीब देश है तो भी सही है, आप कहे भारत एक अमीर देश है तो भी सही है। तो इतना पैराडॉक्सिस के साथ जब इतने सारे लोग रह रहे, मैं तो जब अब बाहर से लोग आते हैं तो फिर ट्रैफिक में देखिए वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे लोग, लेकिन आप देखिए कितना कोऑर्डिनेशन लगता होगा ना जब इतने सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं। इतने सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। हम इतने केओस में, इतनी एंट्रोपी में, इतने डिसऑर्डर में जीते हैं, फिर भी उस डिसऑर्डर में भी देयर इज सम ऑर्डर, उस केओस में भी कुछ तो लय है। तो मुझे लगता है ये लय शायद हमने इतने सारे लोगों के बीच में रहना जो सीखा है इतने सालों से, हमारे पास कुछ चीज़ें कम है, कुछ चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन एक समझ जो हमारी पास ये आई है, तो ये टेस्ट ऑफ इंडिया है, टेस्ट ऑफ आवर कल्चर है। तो मुझे लगता है उसको बरकरार रखना चाहिए। मैं ज़्यादा मैं बोलता ही रहूँगा, आप मुझे पूछिएगा मत। so much into ये थिंग। थैंक यू। So well, technically this is end to our session, but if anybody has any question or would want to kind of learn something from our panel, you're free to ask. So I have a question to you, Ashka, that how Delphic would be working जो subject है culture economy. So how Delphic would be into the center of Gujarat's culture, and how is it going to connect to? So there are many different people who are doing. There is somebody singing song in Ahmedabad, in Rajkot, in Bhavnagar, and they have let's say classical, तो ताल वही है, but how can they connect to economy, because बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो चुके हैं और किसी की हॉबी हो जाती है, but if they want to convert this into real thing which can earn them a bread, how Delphic can be the part into the center, and how it can control the ecosystem, and how it can give exposure to the people who are doing this. So I mentioned Delphic is a platform not only for the artists who are very well known for their work and everything. This is a platform for a commoner as well, and where according to you, like the point which you made, कि a person who is a musician, so he or she can get a platform to it, a recognition to it. A recognition can open him or her doors to various kind of platform, not only through what he or she is practicing into music, but also the knowledge can be shared within
the society people, as in if he can share the knowledge and skill to the students, he can contribute towards making a policy for a culture where a music is one of the part of it. So in this way he can get a recognition. And Do you have like a system, like how do they get connected? In that particular- yeah, so people, anybody can join the movement through various paths. So suppose if there is a category of music, it is not only about the artist who can join, but even a researcher, even a lyricist, or even a person who is making instruments of it, even a person who is creating many folk music of India has their own traditional attires to it. So that person can also contribute towards it. Thank you. Recently, again, I agree with the Purpose Act statement. जो अहमदाबाद में गाड़ी जहाँ बनता है, you can drive anywhere in the world. So, to you also, I have a question. Like, you are into DD. How have you seen, especially Gujarat, evolving from, let's say, 10 years down the line? What was the culture, and where is the present culture going right now? And I personally feel, जैसे Delphic है, so मैं कुछ समझाऊँ Delphic के बारे में. So Delphic is becoming a platform. There are many state highways in this state and national highways. But Delphic is what she is trying to say is going to be an express highway connecting to Globe. When you see, you come from a media background, how do you see the present, actually like the youths, how can they connect to the legacy and of this country, Bharat? Doordarshan ka itna bada legacy. How can we as a youth can connect, and what are you guys doing in Doordarshan where young people can get innovated, like can get attracted towards you guys? इतना दूर भी नहीं है को टेलीस्कोप से देख सकूं, और इतना पास भी नहीं हो कि माइक्रोस्कोप से उसको एनालाइज करने की ज़रूरत करूं. लेकिन अब आज जैसे आप बता रहे हैं ना, जैसे अभी बीच में हम लोग अडालज की वाव में घूमने गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि देयर आर पीपल वो आर डूइंग, देयर वर गर्ल्स डूइंग कथक, और वो रील बना रही थी. तो हाँ, दे वर मेकिंग रील्स वहाँ पे बैठ के, वहाँ पूरा ये करके दे वर सेलिब्रेटिंग द उतना एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के साथ ये कर रही थी. तो मुझे लगता है हर एक के पास अपना अपना कहने का, ये बता रहे थे कि अभिव्यक्ति का तरीका है ही. अब कितने सालों में ये सब यूथ जो जोड़ रहा है, तो कहीं कहीं ऐसा कभी कभी लगता है कि भाई हाँ, हम पूरा ही भटक गए हैं. लेकिन कभी जब हेरिटेज वॉक होता है सुबह अहमदाबाद में, और देखता हूँ हर रोज़ होता है ना देवाशीष जी, बहुत सालों से आई थिंक रोज़ के रोज़ हम हेरिटेज वॉक में देखते हैं. शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि हेरिटेज वॉक में लोग नहीं हैं, है ना. आप लोग भी देखिए, बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं इस चीज़ को सुनने के लिए. यही मुझे लगता है बहुत बड़ा सबूत है. और यहाँ पे बहुत सबसे सब यंग लोग हैं, सब यंग लोग हैं यहाँ पर, आप देखिए. और दिमाग से यंग होना भी यंगनेस यूथ ही है, मतलब ऐसा नहीं है. तो ये एक चीज़ है, उम्र एक अलग बात है. लेकिन इतनी बारिश में भी अगर आज लोग आके कल्चर के बारे में सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इस पे AMM में जिस जहाँ विक्रम भाई सारा भाई की जहाँ जिस पे आशीर्वाद है उस संस्था में अगर हम विज्ञान की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं, इसको भी हम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि यूथ जो है वो समझता है. ऐसा नहीं, कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमारी दिक्कत क्या होती है कि जो नई पीढ़ी है उसको हम नकार देते हैं, चुप तुम्हें कुछ नहीं पता है. अरे वही यूथ जो लगता है 10-10 सेकंड का रील देख के वो उब जाता है, वही यूथ 3-3 घंटे एक ही गेम खेलता है ना. वो मीम्स पे घंटों तक बात करता रहता है. उनका अटेंशन स्पान कम नहीं है, मुझे नहीं लगता उनका अटेंशन स्पान कम है. वो अगर पिक कर लेता है, उसको लगता है कि भाई तुम उनकी बात कर रहे हो या उनके मतलब का है, उनको पहुंचाने का तरीका तुम्हें देना पड़ेगा. अब तुम उनके पास सामने उसकी भाषा नहीं बोलोगे या कुछ ऐसा आप उस ऐसी भाषा बोलते हो जो वो समझ ही नहीं पाएगा, तो वो कैसे जुड़ेगा तुमसे. उसको अगर अडालज का स्टेप वेल समझानी है तो उसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा. उसको उसकी कहानी, उसके आज की जो समस्या है, आज जो सोच रहा है, उसके साथ उसका कुछ तो मेल होना चाहिए. उसको लगे कि नहीं यार, ये भी तो मेरी जैसी ही कहानी है ना. वो प्यास भी वैसी ही थी उस गांव के लोगों की जो प्यास मेरी है आज,
है ना, जिस तरह से मेरे घर पे पानी आता है उस तरह से उस वाव में, उस बाउली में, उस टैप वेल में पानी आना भी वैसी ही बात थी। मेरी और उसकी कहानी अलग नहीं, हम दोनों एक ही है। चाहे मैं 10वीं शताब्दी का हूँ, मैं पहली शताब्दी का हूँ, उससे पहले का भी हूँ, है ना। हमेशा ये चीज़ तो वो रहनी चाहिए कि भी जिसने पहली बार किस चीज़ को खोजा है, किसी शहर को देखा है, नई चीज़ देखी है, तो उसी उत्सुकता से, जैसे पहली बार आदमी ने लिखना सीखा होगा तो जो कहना सीखा होगा, तो अगर मैं जब कहता हूं जो कहने वाली बात है, तो वैसी ही पीड़ा रही होगी पहली शताब्दी में, जब लोगों ने देखा होगा, या 7वीं 8वीं शताब्दी जब नालंदा जल रही थी तो जो पीड़ा हुई होगी, तो शायद आज भी किसी किताब को हम नीचे देख के मुझे भी वो पीड़ा होती है, मेरा लिखा हुआ मेरा ब्लॉग अगर मिट जाता है या डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो मुझे भी वो दोनों एक ही बात है। मेरी हार्ड डिस्क का करप्ट होना या मेरा इंटरनेट का लाइन ब्रेक हो जाना और शायद किसी यूनिवर्सिटी का टूट जाना पुरानी या मिट जाना, वो मेरे हिसाब से तो तात्विक रूप से दोनों एक ही बात है। अगर वो समझ जाए, वो प्यास, वो ज्ञान, वो प्रयास एक ही रहा होगा, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से जुड़ पाएंगे। जो आपने बात की कि वो प्यास सब जगह सेम होती है, तो आई थिंक ऑल ऑफ अस विल रिलेट टू दिस के इटालियन रेवियोली भी हम उतने ही शौक से एक्सेप्ट करते हैं और हमारा दाल ढोकली भी उतने ही पैशन से हम खाते हैं। एंड आज के एरा में आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज एक दुनिया एक ही मुट्ठी में आ गई है सबके। सो जितना इंडियन कल्चर तो रिच था ही, पहले से ही था, एंड दैट्स व्हाट आवर हिस्ट्री टॉक्स अबाउट। बट आज ये हो गया है कि बाहर के कल्चर को भी हम इतना इजीली अडेप्ट कर रहे हैं। वी आर ओपन टू ट्राइंग आउट फूड, क्लोथिंग और वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो देयरफॉर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाता है और अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाता है, इज व्हाट आई फील, राइट? या वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have two Afghani boys today in this room, sitting by their side. And can you just share your culture when you came to Ahmedabad? How was the culture so different? And you guys always talk in person, like how do you love the ecosystem and the culture of this city? So can you please share something about that? Yeah, we'll get you the mic. Please tell your name and where you come from. I'm Tariq. I'm from Afghanistan. I came to from the capital of Afghanistan, Kabul. So whenever I came, I was in Chandigarh. The Chandigarh people there was like different from all over the India. People were there, but in Ahmedabad, one thing I have noticed that the people here are mostly from the Gujarat itself and Rajasthan. Like there is not like from all over India. And then there was another. The people here, they were very so. How can I say? The people were very too much into cultural. So and there was they have some kind of like not bias, but they're trying to keep their culture. And they're too much aggressive. Like if you say something about their culture, they will like jump into you that don't say to our culture. Like yeah. They were really proud of their culture. Yeah, I know. think if rightly that's put. what like same as in Afghanistan. Like if someone's saying to me like this is what I like, they're too much close to Afghanistan. Like yeah, in Afghanistan when someone is jumping to your culture, to your people, so they're very getting aggressive. That's what I like it because what I think is whenever we are coming from the culture, so we have to respect it and we have to be proud of it. So that's what I have noticed. Like there is a similarity between Afghans and the Gujarat people. And there was also one more thing about the Gujarat that, which I like, that the culture, like as you see the chai. Whenever you go to any Afghan, it's you don't like if it's summer, winter, anywhere. Like we have a proverb, like if you're hot, if you want to be cool, even you have to still drink the chai. So that's why the similarity between Afghans and Gujarati I have found this. And overall, yeah, I liked it. I like the Gujarat.
and I like the environment in Gujarat, Chandigarh, and all over. I have been many to places, so like Gujarat and Afghan, they have some similarities. Like I didn't saw any similarities with the in Chandigarh. People were like too much like open all over India, but in Gujarat, I have seen that there are like similarities. They are more into their cultures, like in Gujarat. And I have been to Rajasthan. I didn't notice that in Rajasthan. Rajasthan, they're more into their history in Rajasthan. I have noticed, and the Gujarat are more into culture. In Delhi, they are more into the business. That's what I noticed. Wow, that's a nice observation by you. Yeah, they are like, if you see all like the Mr. Ambani and they're all from the Gujarat. Like whenever you see, like, you're welcome. Thank you so much. It's my pleasure to be here. Thank you. All right. Any further questions? Yes, please. अभी तक हम सब ने पॉजिटिव बातें की हमारे कल्चरल के। आई एम अ क्लासिकल सिंगर और मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था सर। हम लोग दूरदर्शन, मेरी आवाज़ आई थिंक ऑडिबल है। अच्छा, मैं कहना चाह रही थी कि आज हमारे संगीत के विषय में मैं कहना चाहूँगी, घरानेदार गायकी है, आज भी क्लासिकल सिंगिंग है हमारे देश में, और मैं खुद सिखा रही हूँ। आज मैं एक घरानेदार सिंगर हूँ और मैं बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि आज का जो क्राउड है, आज का जो जनरेशन है, क्लासिकल सिंगिंग या हमारे कल्चरल पार्ट को, ठीक है आप सिंगर बनना चाहते हैं, बट जहाँ क्लासिकल सिंगिंग की बात आई, जहाँ हमारा जो संगीत है, जो ओरिजिनल संगीत है, उसको कोई सीखना नहीं चाहता। दे आर टूवर्ड्स दैट कि आज कोरियन म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हमारी जो आज की जो जनरेशन है वो उस तरह की संगीत को पसंद कर रहे हैं, उसको ही सुनना पसंद करते हैं। आई थिंक नीना मैम, आई एम करेक्ट? आजकल सब लोग सुनना, आई एम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स करती रहती हैं। स्पीक मैके हम लोगों ने सुना होगा, जो हमारे इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट आर्टिस्ट लोगों को प्लेटफॉर्म, मतलब काफ़ी हम लोग सोच नहीं सकते उतना कम उसमें हमारे आर्टिस्ट लोग इस कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो आज का जो जनरेशन है वो उस तरफ भाग रहा है, ना कि हमारी भारतीय संस्कृति को पकड़ा हुआ है। और मैं स्पेशली म्यूज़िक को लेके बात कर रही हूँ। अब इसमें मेरी थोड़ी दो राय है। एक तो है कि जैसे गाने का रियाज होता है, वैसे सुनने का भी एक रियाज होता है। शायद हम सुनने का रियाज नहीं करते हैं। शास्त्रीय संगीत के साथ जिस समय में वो जो शायद बना वो शास्त्रीय संगीत है ना, उस समय में लोक संगीत भी हुआ करते थे। जैसे आप माने कि संगीत से ही तो कलाओं की शुरुआत, मतलब कला की जो क्योंकि पहले गा के ही सुनते। जो नरसिंह मेहता ने वैष्णवजन लिखा तो 14th सेंचुरी में वैष्णवजन कुछ अलग तरीके से लिखा होगा, वो गाते गाते यहाँ पर तक पहुँचा। जो भी भक्ति संप्रदाय के या फिर हमारे ये सूफ़ी घराने, मतलब सूफ़ी सिलसिला 14वीं 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन हुए, सूफ़ी आंदोलन हुए, संगीत के जरिए ही हुए। और लोगों का संगीत थोड़ा अलग था। ये जो संगीत था वो संगीत शास्त्रों से, मतलब शास्त्र मतलब ऐसा कोई शास्त्र है नहीं, बट उस तरह से था। अब इसके साथ समस्या ये आती है प्रैक्टिकली में कि ये शब्द प्रधान नहीं है, इसमें शब्द की प्रधानता नहीं है। तो उसको सुनने के लिए, समझने के लिए कोई सिखाने वाला, मतलब एक बार आप बता दें कि ध्रुपद मुझे सुनना है, ध्रुपद गायकी में ख्याल एक्सप्लोर आप किस तरह से राग को करते हैं, और अगर पखवाज क्या है, किस तरह से आप वीणा के स्वर, उसके तार, आप एक बार को एक सिखा दें एक बार पहले से चीज़ों को, तो आप वो उसके आपके लिए एंजॉयबल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सप्तक में बहुत सारे लोग आते हैं। इसे अहमदाबाद में देखिए, सप्तक जब होता है 10-12 दिनों का, आई थिंक क्लासिकल म्यूजिक का इतना फेस्टिवल है और लोगों की भीड़ रात तक रहती है, लेकिन उसमें से समझने वाले बहुत कम हैं। हाँ नहीं हाँ, मतलब भीड़ रहती है उसके बाद लेकिन समझने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन एक बार समझना चालू कर दे, है ना, जिस तरह से हम लोग जैसे गरबा जो है, तो मतलब गरबा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, गरबा किसी टीचर ने नहीं सिखाया ना, है ना, बराबर। ओडने वो गरबा नहीं है, वो गाना है। लेकिन वो चकडोड़ हूँ तो गई थी मेड़े, या पाटण ना पटोड़ा, तो ये सब थोड़ी ना कहीं ना किसी कोर्स में सिखाया गया है।
अब जैसे बहुत ये विक्रम ठाकुर के गाने काफ़ी फेमस होते हैं, अब हाथ माचे विस्की के एक खबर नहीं आने का आयुष है कि नहीं कि अब हमको लगता है ये कल्चर नहीं है, पर जो गांव का आदमी है, जो जिसकी वॉकेब बड़ी कम है, जिसकी भाषा बड़ी कम है, जिसका 15वें साल में 17वां साल में दिल टूट गया है, अब उसको नहीं समझ में आएगा ना भारे भारे गुलजार के शब्दों का ये मेरा कुछ सामान, कोई ये समझ में नहीं आएगा। या फिर क्लासिकल उसको उसकी जो भावना जो बता रही है ना नीना जी काफी टाइम से यही कह रही कि जो मैं कह नहीं पा रहा हूं ये कोई और कह रहा है और उससे मेरी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो जो जिस भाषा में आप देखिए छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़िया गाने होते हैं, गढ़वाली गाने होते हैं, तो जब लगता है कि गाना मेरी बात कह रहा है, मुझे समझ रहा है, तो वहां पे जाके ये करते। क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छी तरीके से चीज करता है, लेकिन उसको सुनने समझने के लिए मुझे मेरी लाइफ में मुझे ठहराव चाहिए। शायद वो हमें अपनी स्कूलों से, आसपास से लोगों से, और दूसरा हमने उसको ऐसा बना दिया है कि ये बड़ा ही पेचीदा सा कॉम्प्लेक्स सा आर्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर सुने समझे तो आप समझ सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग समझते नहीं है, एक बार उसको समझाने की एक ऐसी विधि आ जाए कि भाई हाँ कोई भी आके उसको आसान भाषा, वो संगीत का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको आसान कर दे एक बार, तो मुझे लगता है कि वो हमने थोड़ा प्रयास किया। जब भी हम करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे किसी बिल्डिंग के बारे में आप बताए, किसी खाने के बारे में बताए, अब कोई अगर बताए कि इसकी रेसिपी ऐसी होती है कि भाई ये देखो ये चीज़ 14 घंटे पकती है तब जाके तैयार होती है ना। तो जैसे आप बताए कि एक सितार वादक 10 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद वो स्टेज पे चढ़ता है, अब ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी साधना है। अब बंदिश बैंगीत जब आई तब लोगों ने क्लासिकल उस सुर तान में गाना, मतलब पूरा क्लासिकल नहीं है बट वो फ्यूजन करके भी लोगों तक सितार तो पहुंचा। आज भी आप देखिए हयात में या कहीं मैं देखता हूं लोग, ऐसा नहीं लोग सुनते हैं, लेकिन एक होता है एक उनके पास एड्रेस नहीं है, कौन सा एड्रेस पे जाके हम कौन सा दरवाजा खटखटाए तो कोई आदमी आके कोई चीज़ आके हमें बताए। अगर आप वो चीज़ अगर इंटरनेट पर भी ढूंढते हैं तो भी ठीक ठाक नहीं मिलती है, उसमें बहुत ही ये मिक्स हो जाता है। तो लोग डरते हैं एक्चुअली, दे फियर ऑफ कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्लासिकल डांस कॉम्प्लेक्स चीज़ है। भरतनाट्यम मुझे समझ में नहीं आता था, अभी परसों ही एक आनंद गित्रम में मुझे जाना है, लेकिन मैं थोड़ा समझा कि ये भरतनाट्यम होता क्या है, किस तरह से होता है। बट मैंने अंडरस्टूड, आई फाउंड आउट कि एक ही आदमी है जो अपने भावों को एक समय में कृष्ण हो जाता है, दूसरे ही पर राधा, दूसरे ही पर सुदामा हो जाता है। ये कायाकल्प जो होता है बड़ी बात है, जिससे मुझे समझा है कि ये इस तरह से होता है। आप जो भाव राग ताल की जो बात करते हैं, आप भावनाओं की बात करते हैं, तो कला जो चीज़ है वो एक बार कोई समझाने वाला चाहिए। क्योंकि कला कब आती है, जब आपकी बेसिक नीड्स खत्म, मतलब आपकी रहने खाना वो रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम हो जाता है, उसके बाद शायद अब कला को समझने का आपके पास ये रहता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे अगर समझाना चालू करेंगे, हम लोग भी जो भागेंगे उनसे, जो समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बात नहीं कर पाएगी। हमारे यहाँ पे बात नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ हम नहीं समझते उसमें मुंडी हिलाते रहते हैं। हम पूछने से डरने वाले लोग हैं कि नहीं आती है ये चीज़, नहीं आती है तो पूछते नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, वैसे मुझे ये होता है ताल में ये करते क्या ऐसे बैठ के, जो आगे हम कभी भी ऐसे शास्त्रीय संगीत में जाते हैं आगे तो 2-4 ऐसे एकदम धीर गंभीर एकदम नॉलेजेबल आदमी लगते हैं कि भी ऐसे ऐसे करते हैं, करते क्या है। तो हम भी ऐसे ऐसे करते हैं, बाकी सब लोग भी ऐसे ऐसे करते हैं। फिर मैंने किसी से पूछा ये होता क्या है, कि वो ताल गिन रहे हैं वो ताल गिनते, हर राग के हिसाब से ताल होता है और उसमें मात्राएं होती है, वो गिनते हैं। तो अब पूछने के बाद अच्छा, तो वो उससे तय करते कि वो राग सही गा रहा है नहीं, या उसका ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर एक नहीं आता है जब होता है चालू, वो 1 घंटे पहले से आ जाते हैं वो तबले को ठीक करने के लिए, ठक 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 ठक। बोले ये पहले से क्यों नहीं रखते हम जब आके बैठते तभी इसको तबला ठीक करना है। अब ये बहुत कॉमन सी क्वेरी है मुझे, लेकिन किसी को पूछा तो मुझे समझ में आया कि अरे भाई ये आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको टेम्परेचर देखना होता है, तबला चढ़ जाता है, फिर वो बाजू में ये तानपुरे वाला क्यों बार बार ये क्या करता है ना, ये क्या 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 मिलाता है। लेकिन फिर पूछा, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप सबको भी दिमाग में होगी, है ना। हम कोई शास्त्रीय संगीत का मैं कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये पूछ के पता चला। तो लेकिन पहले ये पंडित है, इसको कैसे पूछूंगा मैं ये सब चीज़ें। उसी पंडित को जब पूछा तो उसने आराम से बताया, क्योंकि उसने पूरा ये करके रखा है। तो ये संवाद है ना, ये थोड़ा हमें थोड़ा करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे होगा। सबकी मेहनत लगती है, टीवी की, आपकी, सबकी, एक बार एक पे पहुंच जाएगा
और उसकी बात, उसके दिल की बात जब करेंगे, आम आदमी के दिल की बात, मुझे लगता है कि वो शास्त्र से निकल के आम लोगों का संगीत बन जाएगा। कि आई हैव फेस दिस अ लॉट, लाइक बीइंग अ यूथ, हमारा जो चीज़ होता है या हमारी डिमांड होती है कंपेयरिंग विद द के ड्रामा और के पॉप का जो भी है, तो आज की यूथ को है ना जो भी कुछ चाहिए, फर्स्ट दे थिंक दैट पुरानी और क्लासिकल चीज़ें है ना वो तो बूढ़े लोगों के लिए होती है और दैट इज़ नॉट इन फैशन राइट नाउ, सो वी वोंट, अगर वो हम करेंगे तो हमारे दोस्त एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चीज़, या फिर हम अच्छे नहीं लगेंगे ये चीज़ करते हुए। वेर इज वॉट द वेस्टर्न कंट्री आर डूइंग, वो अपना खुद का नया चीज़ बना रहे, दे डोंट हैव एनी कल्चरल लेगेसी विथ हिम, दे आर डूइंग समथिंग न्यू विच टुडेज जनरेशन कैन रिलेट दैट लैंग्वेज टू। आज इफ कंपेयर टू अगर कोक स्टूडियो देखो, कोक स्टूडियो दे लव इट बिकॉज द एंटायर सेटअप और द इकोसिस्टम व्हाट दे आर क्रिएटिंग इज इन देयर लैंग्वेज। अगर वही चीज़ टुडे विद डेल्फिक वी वांट टू गिव दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गिव एन इमेजिनेशन एंड यू नीड टू गिव देम ओन प्लेटफॉर्म, उन्हें ये मौका भी देना चाहिए कि ठीक है इफ़ यू वांट टू डू बट यू वांट टू डू फॉर योर कंट्री, सो वेयर दे प्लेस देम इन कंट्री ना, वो हमें चीज़ और एक वॉइस उनका भी होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि हमारे कंट्री में है ना लाइक मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द जनरेशन इज़ यूथ, तो अगर कोई यूथ अगर वो सेम चीज़ करेगा ना देन दे विल एक्सेप्ट इट बिकॉज वही लैंग्वेज एक दूसरे की समझते। इफ अ ओल्डर पर्सन और मिडिल एज पर्सन इज डूइंग दे थिंक दैट दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी टू इट, तो एक जो एक कनेक्शन भी होता है ना, इट मैटर्स अ लॉट इन इट। I think we are pressing on time, but one small thing, and what I really feel is कि ये जो topic है cultural heritage and economics, so वो इसलिए relevant है because I think कहीं ना कहीं for example when we talk of सप्तक में जो audience आती है, जो आपने बोला कि they'll be dressed in a it's for elite, कि अलीट क्लास ही आके वहाँ पे सुनता है, या तो 2-5% लोग होंगे जिन्हें सच में कला की समझ है और बाय इंटरेस्ट वो लोग आ रहे हैं। सिमिलरली पहले भी अगर हम सुने तो कुछ कल्चरल चीज़ें तो भाई ये हमारे राजा महाराजाओं के शौक़ थे या नवाबों के शौक़ थे या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारा कल्चर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्लासिकल सिंगर है, वो शायद हमारे कंट्री में रह के उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना वो बाहर की दुनिया में जाके कमा के आता है, राइट। सिमिलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, उनके के ड्रामाज हैं या उनके पर्टिकुलर फूड है, बर्गर्स या पिज़्ज़ा, ये सब हमारा कल्चर ही नहीं है। बट यहाँ पे इन टुडेज़ टाइम हमारा कल्चरल फूड जो है उसको हम ज़्यादा ऑफकोर्स प्रमोट कर रहे हैं बट उतना नहीं प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट। एंड आई थिंक AMA ने ये टॉपिक बहुत ही सही चुना है बिकॉज कल्चर जो है उसको इकोनॉमी के साथ जोड़ के हाउ यू एनहेंस द होल थिंग, यू नो, दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल दीज डेज। जहाँ बिकॉज कोई भी इकोनॉमिक एडवांटेज अगर नहीं है उस चीज़ में तो कहीं ना कहीं लोगों का एट लार्ज इंटरेस्ट उसमें से चला जाएगा, you know. So hoping for such more sessions because this is such a varied topic, and thank you all once again. Thank you the esteemed speakers here, and wonderful evening with all of you. Thank you so much.